Hello students, I am Didi Doda from Saima Education Point. Today I'll explain you class 11th history theme 3, an empire across 3 continents. In this chapter we'll read about the Roman Empire. During 1st century BCE to 7th century AD, how the Roman Empire was organized, how it developed, how it was divided, and at last how it was seized by another empire. So here we'll find out that during 1st century BCE, means 2000 years ago from present day, the Roman Empire was a very big empire. It was stretched over a vast territory, means एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था. It was spread at that time across the 3 continents, Europe, West Asia and a large part of the North Africa. In this chapter, we'll study that from 1st century to 7th century AD, means during 700 years, how the Roman Empire was organized, how it flourished, and how it was divided into parts, and how it was seized by the Arabian Empire at last. So let's start reading the text of this chapter, page number 58. The Roman Empire covered a vast stretch of territory. Vast stretch means big. Vast stretch of territory means very big area. Means the Roman Empire was spread over a very big area that included most of Europe as we know it today and a large part of Fertile Crescent. Fertile Crescent means part of West Asia and North Africa. It means the Roman Empire was spread over 3 continents: first Europe, second West Asia and third North Africa. In this chapter we shall look at the way this empire was organized, means how this Roman Empire was organized, the political forces that shaped its destiny, means what political forces were there, means which leaders were there who helped it to flourish, and the social groups into which people were divided. You will see that the empire embraced means had, or held a wealth of local cultures and languages. Wealth means so many, lot of. Local cultures and languages means different culture and language के people रोमन साम्राज्य में रहते थे. तो that women had a stronger legal position then. मतलब उस समय at that time during Roman Empire जो women की condition थी, that was very much good than they do in many countries today. Even आज कुछ countries में women की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उस समय रोमन साम्राज्य में हुआ करती थी. But also that much of the economy was run on slave labor. Economy जो थी that depended on slave labor, means poor people, denying freedom. और उनको freedom बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ था. They were not given any kind of freedom to substantial number of persons. Substantial means a large number of person, means the poor people. The number of poor people was too much there at that time. From the 5th century on, the empire fell apart in the west. In the western part का जो एरिया था रोमन एम्पायर का, that fell apart means बिल्कुल almost ख़त्म हो गया था 5th century में, but remained intact and exceptionally prosperous in its eastern half. लेकिन eastern half का जो part था रोमन किंगडम का, that remained intact means undamaged, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ था, and exceptionally prosperous, और बहुत रिच था वो. The caliphate which you will read about in the next chapter
खलीफा के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, दैट बिल्ड ऑन दिस प्रोस्पेरिटी। जो खलीफा लोग थे वो इस प्रोस्पेरिटी की वजह से ही बने थे, एंड इनहेरिटेड इट्स अर्बन एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, और उन्होंने अपनी इनहेरिटेड मीन्स आगे लेके बढ़े थे अर्बन और रिलीजियस ट्रेडिशंस जो उनकी थी उनके साथ साथ। रोमन हिस्टोरियंस हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज टू गो ऑन। तो रोमन जो हिस्टोरियन हैं, जो हिस्ट्री को राइट करने वाले हैं, जानने वाले, उनके पास दे हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज, उनके पास बहुत सारे कलेक्शंस रिसोर्सेज हैं हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के, रिकन्स्ट्रक्ट करने के। कैसे? हाउ? विच कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट, नंबर ए टेक्स्ट, नंबर बी डॉक्यूमेंट्स, एंड नंबर सी मटेरियल रिमेन्स। अब इसमें बताएंगे टेक्स्ट में क्या आता है। टेक्सुअल सोर्सेज इंक्लूड हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज, मतलब उस टाइम के, कंटेम्प्रेरी मीन्स एट दैट टाइम जो लोग थे जिन्होंने हिस्ट्रीज लिखी थी, वो टेक्सुअल सोर्सेज हैं, एंड दे वर यूजुअली कॉल्ड एनल्स, और उन हिस्ट्रीज को, बुक्स को बोला जाता था एनल्स, बिकॉज द नरेटिव वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन ईयर बाय ईयर बेसिस, क्योंकि वो हर साल लिखे, साल बाय साल, हर साल ईयर बाय ईयर लिखे जाते थे, इसलिए उनको एनल्स बोलते थे। एनल मीन्स एनुअल। लेटर्स, स्पीचेस, सरमन्स, लॉज एंड सो ऑन, ये सारे किस में आते हैं? टेक्सचुअल सोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज दैट इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शन एंड papyri. Inscriptions means something written on stones, or papyri means something written on a kind of tree, on the leaves of that tree. अब papyrus नाम का एक ट्री होता है, उसकी लीव्स के ऊपर कुछ राइट किया जाता था, फिर उसको सेफली रखा जाता था। तो ये चीज़ें किस में आती हैं? डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में। इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन, और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था? इंस्क्रिप्शंस वर यूजुअली कट ऑन स्टोन, इंस्क्रिप्शंस स्टोन्स पे राइट किए जाते थे। सो अ लार्ज नंबर सर्वाइव, इसलिए स्टोन पे राइट करने के वजह से बहुत टाइम तक वो इंस्क्रिप्शंस सर्वाइव कर रहे थे इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन। और कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? ग्रीक एंड लैटिन में। द पपायरस वॉज अ रीड लाइक प्लांट। रीड लाइक प्लांट मीन्स जैसे अपने नहर के किनारे पे सरकंडे वगैरह जैसे होते हैं, उस टाइप का एक पौधा होता है, दैट इज़ कॉल्ड पपायरस, दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ नाइल रिवर इन इजिप्ट। इजिप्ट इज़ इन अफ्रीका, तो अफ्रीका में नाइल रिवर है, उस रिवर के किनारे पे पपायरस नाम का ट्री था। उस ट्री की लीव्स होती थी बड़ी बड़ी, उन लीव्स के ऊपर राइट किया जाता था और फिर उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोर्स एंड वॉज प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ राइटिंग मटेरियल। और उस जो पपायरस ट्री है उसको किस लिए यूज़ किया जाता था? प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ राइटिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल बनाने के काम में लिया जाता था। दैट वॉज वेरी वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ, और वो उस टाइम एवरीडे लाइफ में बहुत यूज होता था। थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सर्वाइव ऑन पपायरस ट्री। पपायरस की लीव्स के ऊपर बहुत सारे उस टाइम हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लिखे हुए मिले हैं, एंड हैव बीन पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स, और वो ऐसे स्कॉलर्स के द्वारा पब्लिश किए गए थे या राइट किए गए थे, हु आर कॉल्ड पपायरोलॉजिस्ट, जिनको पपायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। मटेरियल रिमेन्स इंक्लूड a very wide assortments means type of items that mainly archaeologists discover। अब material remains में क्या क्या चीज़ आती हैं? वो चीज़ें जो आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रू एक्सकवेशन एंड फील्ड सर्वे, या तो वो खुदाई करके या फील्ड सर्वे से। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स एंड अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी है, चाहे वो किसी प्रकार की स्ट्रक्चर मिलती है, कोई मोन्यूमेंट है, जैसे अपने यहाँ पे फोर्ट्स बने हुए हैं, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, बहुत सारे किले बने हुए हैं, कोई भी बिल्डिंग है पुरानी, तो दीज आर कॉल्ड मटेरियल रिमेन्स। उसके अलावा क्या है? पोट्री, कोइंस, मोज़ेक। मोज़ेक क्या होता है? अ काइंड ऑफ कलरफुल स्टोन, और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाई जाती थी। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोर्स। इवन एंटायर लैंडस्केप, फॉर एग्जाम्पल थ्रू द यूज़ ऑफ एरियल फोटोग्राफी। एरियल मीन्स फ्रॉम द स्काई, एयर से, हवा में जाके, स्काई से ऊपर से जो फोटोग्राफी लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोर्स। ईच ऑफ दीज सोर्सेज कैन ओनली टेल अस जस्ट सो मच, मतलब बहुत कुछ बता सकते हैं ये सोर्सेज हमें अबाउट द पास्ट के बारे में, एंड कंबाइनिंग दैम, और अगर हम उनको कंबाइन कर लें एक साथ,
तो कैन बी अ फ्रूटफुल एक्सरसाइज, तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए. बट हाउ वेल दिस इज़ डन डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरियन स्किल. लेकिन ये कितना अच्छे तरीके से किया जाता है ये डिपेंड करता है उस हिस्टोरियन के ऊपर जो इसको यूज़ करता है. Two powerful empires ruled over most of Europe, North Africa, and the Middle East in the period of the birth of Jesus Christ and the early part of the 7th century. मतलब फर्स्ट सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक 700 ईयर्स में टू पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट. दो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट. कौन कौन से थे देखते हैं. सेट डाउन टू द 630s, मतलब 630 के आसपास, 630 ईयर के आसपास. द टू एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम एंड ईरान. वो कौन से थे दो, रोम एंड ईरान. ये देखिए यहाँ पे दिस होल इज रोमन एम्पायर एंड दिस साइड नियर ब्लैक सी, दिस साइड ईरान वॉज देयर. Okay, the Romans and Iranians were rivals. Rivals means enemies, and fought against each other for much of their history. History means past में वो जनरली क्या करते थे, फाइट करते रहते थे. Their empire lay next to each other. एक दूसरे के साथ साथ उनके एम्पायर थे, किंगडम्स थे. Separated only by a narrow strip of land. एक छोटी सी लैंड की स्ट्रिप बनी हुई थी, उससे वो डिवाइडेड होते थे. That ran along the river यूफ्रेटिस, और इसको हिंदी में बोलें तो फ्रात रिवर. यूफ्रेटिस, इट इज़ यूफ्रेटिस. तो एक यूफ्रेटिस रिवर थी ईरान में. उस रिवर के उस साइड में तो ईरान का किंगडम था, और वेस्ट में रोमन किंगडम था. In this chapter we shall be looking at means we shall read about the Roman Empire, but we shall also refer in passing to Rome's rival Iran. Means whenever we will read, beside reading about Roman Empire, we will read about Rome's rival, means Rome's enemy, Iran also. If you look at the map, you will see that the continents of Europe and Africa are separated by a sea that stretch all the way from Spain in the west to Syria in the east. ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं. दिस इज यूरोप एंड डाउन साइड दिस इज अफ्रीका, एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय अ सी. दिस इज द सी एंड दिस इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी. दिस इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी. So this sea is called Mediterranean Sea, and it was the heart of the Roman Empire. So this sea was the heart of Roman, means this was very much important at that time. The Rome dominated the Mediterranean and all the regions around that sea in both directions, north as well as south. To the north, the boundaries of the empire were formed by two great rivers, the Rhine and the Danube. Here we can see this is the Rhine river. This is the Rhine river and this is Danube river. These are the two rivers and these make the boundary of Roman Empire. And to the south, by the whose expense of desert called the Sahara. And here downside at south side, if you will see, this is Sahara desert. This is the boundary of Roman kingdom. Okay, so रोमन साम्राज्य यहाँ तक था कि सहारा डेजर्ट के पहले तक, और इधर से यहाँ से लेके ये राइन रिवर और डेन्यूब रिवर है, ये सारा ये मेडिटेरियन सी जो है ये इसके अंडर में आता है. ये सारा मिला के क्या था, रोमन एम्पायर था. और इसके इस साइड में यहाँ पे ब्लैक सी के आसपास कॉन्स्टेंटिनोपल और ये सारा एरिया जो था ये ईरान का था. तो एक दूसरे के साथ साथ मिले हुए थे. दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर. इतनी बड़ी जो टेरिटरी थी, दिस वॉज रोमन एम्पायर. ये नक्शे में आपको, मैप में आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एरिया है.
Iran controlled the whole area south of the Caspian Sea down to eastern Arabia and sometimes large part of Afghanistan as well. तो ईरान जो था वो कैस्पियन सी के डाउन साइड में जो ईस्टर्न अरेबिया था, अरब कंट्री था, और बहुत बड़ा पार्ट अफ़गानिस्तान का भी, ये सब मिला के ईरान किंगडम, ईरानियन किंगडम था उस टाइम. दीज टू सुपर पावर्स हैड डिवाइडेड अप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा इन दो पावर्स ने डिवाइड कर रखा था. एक साइड में तो रोमन एम्पायर था और दूसरी साइड में क्या था, ईरानियन किंगडम. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट द चाइनीज़ कॉल्ड, और चाइनीज़ लोग इन दोनों जो एरिया थे इनको क्या बोलते थे, टाचिंग, ग्रेटर चिंग, मतलब ग्रेटर चिन बोलते थे इनको, ग्रेटर चिन, रफली द वेस्ट. So these were the two pages, first two pages we have done of chapter number 3, and from these two chapters whatever questions will be there that I'll send you, and you have to do these question answers in Fair Notebook, and next pages I'll explain you in next video. Till then, bye bye, have a nice day, and thank you very much.